मुल्क में 5G से इनकलाब आ गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों हाई स्पीड इंटरनेट खदमात की शुरुआत हो गई। मुल्क के 13 शहरों में ये खदमात दस्तयाब हो गई हैं। आइंदा साल के आखिर तक इस खिदमत को मुल्क भर में वुसअत देने का निशाना है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन तारीखी है। उनका कहना है कि मवासलात के शोबे में 5G खिदमात से बड़ी तब्दीली होगी। इस खिदमात से कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के इस ऐतिहासिक कालखंड में 1 अक्टूबर 2022 ये तारीख इतिहास में दर्ज होने वाली है। दूसरा, नवरात्रि का पर्व चल रहा है। शक्ति उपासना का पर्व होता है और 21वीं सदी की जो सबसे बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को नई ऊंचाई पर ले जाने का आज भी आरंभ हो रहा है। आज देश की ओर से, देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री की ओर से 130 करोड़ भारतवासियों को 5G के तौर पर एक शानदार उपहार मिल रहा है। 2014 में जहां देश में 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, 8 साल पहले 2, अब उनकी संख्या 200 के ऊपर है। आज भारत मोबाइल फोन उत्पादन करने में दुनिया में नंबर 2 पर है। इतना ही नहीं, जो कल तक हम मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया को बेच रहे हैं। सोचिए, 2014 में 0 मोबाइल फोन निर्यात करने से लेकर आज हम हजारों करोड़ के मोबाइल फोन निर्यात करने वाले देश बन गए हैं, एक्सपोर्ट करने वाले देश बन चुके हैं। अगर हम इंटरनेट कनेक्शन की संख्या की बात करें तो 2014 में जहां 25 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे, वहीं आज इसकी संख्या करीब करीब 85 करोड़ पहुंच रही है, 85 करोड़ पहुंच रही है। ये बात भी नोट वाली है कि आज शहरों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या के मुकाबले हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट यूजर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। और उसकी एक खास वजह है, 2014 में जहां देश में 100 से भी कम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा था, आज 1,70,000 से भी ज्यादा पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंच चुका है। 5G खिदमात के आगाज पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि 5G डिजिटल से लोगों को काफी फायदा होगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तानियों की जिंदगी में सेहत, दौलत और खुशी लाएगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक 5G सर्विसेज मुल्क के कोने कोने तक पहुंचा दी जाएंगी। Today is also very special because it coincides with our national celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Our beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, has shared an inspiring vision of making India a nation by 2047. Every policy and every action of the government is skillfully crafted to propel India towards that goal. The steps taken to fast-track India's march into the 5G era provide. This is most heartening because 5G is much more than the next generation of connectivity technology. To my mind, it is a foundational technology
that unlocks the full potential of other 21st century technologies like artificial intelligence, Internet of Things, robotics, blockchain, and metaverse. In fact, I think of 5G as an acronym for 5 goals that fundamentally can transform our nation. And high quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help young Indians realize their full potential by arming them with world-class capabilities and competencies so that they can earn more and make India globally competitive. Second, 5G can affordably deliver high-quality healthcare to rural and remote areas by turning existing much additional investment. This will make services of the best doctors available, improve the of diagnostics and enable real-time clinical decision-making. All this will enhance health, wealth, and happiness. The gap between urban and rural India by accelerating digitization and intelligent data management of agriculture services, trade, industry, the informal sector, transportation, and energy infrastructure. This will create huge efficiencies in all economic activities, making India a hub of innovation and also help us mitigate the climate crisis. 4, 5G can make available the same powerful productivity tools to small-scale industry and commercial enterprises as are used by and profitability of all sectors of India's economy. And fifth and final, by bringing artificial intelligence into every domain, 5G can power India's emergence as the world's intelligence capital. This will help India become a major exporter of high value added and the most affordable rates that anyone else has in the world. Today, I want to reiterate Jio's commitment to deliver 5G to every town, every taluka, and every district by December of 2023. श्री मुकेश अंबानी जी मेरे पिताजी ने बताया जियो का पूरा प्लान होएगा कि दिसंबर तक पूरा इंडिया कवर हो जाएगा। भाग भाग इंडिया में अपन देखेंगे कि 5G के अनुसार बहुत सारे नए एप्लीकेशंस आएंगे और जैसे प्राइम मिनिस्टर सर्विसेज अफोर्डेबल होगी, किस तरह की सर्विसेज होगी 5G? एब्सोल्युटली हम बहुत अफोर्डेबल करेंगे, हर करेंगे। थैंक यू। कठुआ रहता था, पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया है। नौजवान की शिनाख्त मोहम्मद सलीम साकिन महानपुर बिशौली के तौर पर हुई है। पुलिस मजीद इस मामले में तफ्तीशी कार्रवाई कर रही है। डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन जम्मू ने साइबर क्राइम पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया, जहां के मुलाजमीन को साइबर हिफ्ज़ान सेहत से मुतल्लिक़ मालूमात फराहम की गई। साइबर जराइम पेशा अफराद की जानिब से इख्तियार की जाने वाली मुख्तलिफ तकनीक और उससे बचाव के लिए किए जाने वाले इक़दामात वर्कशॉप का बुनियादी मकसद था। वर्कशॉप का इनेकाद MY के साइबर माहिर ने की। साइबर जराइम पेशा अफराद के इस्तेमाल करदा तरीक़ेकार पर तज़ियाती तौर पर तबादले ख्याल किया। जॉइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सपना कोतवाली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महकमे इस हवाले से अवामी आगाही पैदा करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और कम्युनिटी सेंटर्स में इस तरह का इनेकाद किया जाएगा। हमारा एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, सर कोविड की तरह 1% में अगर आ भी जाएगा तो हम पुलिस स्टेशन के वैसे भी अच्छा काम कर रही है और क्राइम डिपार्टमेंट भी अच्छा काम कर रहा है, वो भी हेल्प कर रहा है इनको सॉर्ट आउट करने में, मगर अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी चीज़ है, वो हर लेवल पर हो रही है। अपने घर से ही चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो इसीलिए मैंने पहले अपने ही डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे ऑफिस के कुछ शिकार प्रॉब्लम हो जाता है,
हो जाता है कि और उसका कसूर ही नहीं था। तो इस चीज़ को मैंने खुद ही पर्सनली सोच के डायरेक्टर साहब को बोला कि हम पहले अपने डिपार्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऐसे अगर आज का प्रोग्राम आप लोगों को भी अच्छा लगा और आप भी अवेयर करेंगे तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि बाकी डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व करें और पब्लिक को, कॉलेजेस के बच्चों को, और ऐसे ही कोई मास्टर ट्रेनर्स हम तैयार करें। यहीं से ट्रेन करके मास्टर ट्रेनर्स फिर जगह जगह जाएँ और लोगों को अवेयर करें। और ये वर्कशॉप हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। रोज़मर्रा की जीवन में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, जैसे फ़ोन गर्म हो जाना या कोई ऐसे मैसेजेस आना, हम लोग क्लिक कर देते थे अननोइंगली। आज हमें पता चला है वो कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है, कितना हम लोग अपना डेटा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने पासवर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। इस वक्त हम सब लोगों ने बहुत सीखा है कि कैसे हम अपना प्राइवेसी को सेफ रखें, कैसे टाइम टू टाइम हमें अपने पासवर्ड्स चेंज करने हैं, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखने हैं, अननेसेसरी साइट्स को नहीं विजिट करना है। आपका खैर मकदम है। कश्मीर में जराइम पेशा अफराद के लिए बाहर के साइबर मुजरिम कश्मीर में लोगों का इस्तेसाल करते थे, लेकिन अब एक मकामी गैंग जिनसी इस्तेसाल में मुलविस पाया गया है। श्रीनगर में पुलिस ने तकरीबन 35 लाख रुपए की फहशी के इल्ज़ाम में एक जोड़े समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। SS18 से खास बातचीत की। नॉलेज में 2 किस्म के ऐसे मामलात आए हैं। पहला तो वो है कि आप जब अपने हाउस में बैठे हैं, यू विल गेट वीडियो कॉल एंड यू विल नॉट नो दैट हु इज़ द कॉलर, लेकिन आप जैसे ही उठाएंगे तो आगे एक लड़की होगी हु विल बी न्यूड और वो आपकी उसको स्क्रीनशॉट करके रख लेगी। उसके बाद सिग्मा कारण उनको ये लगता है कि लोगों को ये लगेगा कि ये जो भी उनकी वीडियो कॉल हो रही थी उनकी इच्छा से हो रही थी, लेकिन ऐसा है नहीं। तो उन लोगों से मेरी यही है कि दे शुड अप्रोच अस। अगर ऐसा कोई वाक़या उनके साथ हुआ है तो हमारी नॉलेज में लाएं। ये है पहला वाला। नंबर 2, जो अभी हालिया एक हमारी FIR हुई है उसमें ये चीज़ आई थी कि एक ऑर्गेनाइज था पूरा यहाँ पे गैंग। उस गैंग में एक औरत थी, वो औरत यहाँ के इन्फ्लुएंस करती थी उनके साथ, कुछ उनको शी यूज्ड टू आस्क फॉर हम सम हेल्प, और जब उनकी जान पहचान पास मेरे घर पे या इस जगह जैसे ही वो आदमी आता था, रूम में आता था, तो वो लेडी उसका एक हस्बैंड भी था और वो इस बात की रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट हो जाती थी। जो आदमी वहाँ पे विक्टिम होता था ही वॉज नॉट अवेयर हो गया और उसको भी सोशल स्टिग्मा होता था कि ये बात अगर बाहर मेरे ख़ानदान वालों को पता लगेगी, पता मेरी बीवी बच्चों को पता लगेगी तो मेरी इंसल्ट होगी। बट ज़्यादातर मामलों में यही हमने पाया है कि विक्टिम वॉज नॉट इन्वॉल्व, वो सिर्फ उसके पास उसकी हेल्प करने के लिए जाता था और वो लेडी इमीडिएटली 2 सेकंड के अंदर अंदर इमीडिएटली वो अपने कपड़े उतार देती थी और उसका हस्बैंड और बाकी लोग जो गैंग के मेंबर हैं वो अंदर आकर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देते थे। तो ऐसे हमारी नॉलेज में ये 6 मंथ में कोई 7-8 लोगों से इन्होंने ये पैसे एस एक्सटॉर्शन एस ब्लैकमेलिंग का लिया है। तो एक आदमी तो हमारे पास आया, ही रिपोर्टेड टू अस, बट अदर्स हु वर द विक्टिम दे हैव नॉट रिपोर्टेड टू अस। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि ये गैंग या कोई और ऐसा कोई अगर यहाँ पे गैंग है विच इज़ डूइंग ऑल दिस रॉन्ग थिंग्स, तो दे शुड इमीडिएटली अप्रोच अस। हम जो भी ऐसा आदमी होगा उसकी आइडेंटिटी को छुपा के रखेंगे। और ये बात बिल्कुल है कि दे हैव नथिंग रॉन्ग इन दिस, उन्होंने कुछ रॉन्ग नहीं किया। इस केस में भी यही लगा अभी तक इन्वेस्टिगेशन पता कि एज सुन एज ही रीच द होम, वो सिर्फ रूम में आया, रूम में आते ही ये लेडी ने अपना उसको एग्जीक्यूट उन्होंने किया। सर, ये हमें अभी सुनने में बहुत आसान लग रहा है कि आपने जब हम कहानी ये बात सुन रहे हैं, लेकिन जब आपके पास इस तरह के केस आते हैं, आपके पास जब ये केस आया तो इसका प्रोसेस करने में कितना वक्त लगा और कैसे ये सामने आया? एक ही फैमिली थी या वे अलग अलग? बिल्कुल, पहले हमारे पास एक ही आदमी आया तो हमें थोड़ी सी वो थी स्टार्टिंग में अप्रीहेंशन कि ऐसा क्या यहाँ पे हो सकता है। कि जब हमने इसको शुरू में FIR हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, नॉट हैविंग FIR, जब हमें ये बात का यकीन हो गया पूरा कि जो वर्जिन विक्टिम का है ये ऐसा ही है, जब हमने उसके अकाउंट स्टेटमेंट देखे, उसके अकाउंट से एक और अकाउंट में गए, इनकी लोकेशन सब लोगों ने देखी और जहाँ जहाँ भी इसने कहा मैं आके मिला, तो वहाँ का हमने जब देखा तो हमें इस बात का हमको इन्फॉर्मेशन आई कि ये जो वर्जन विक्टिम का वर्जन है ये पूरा राइट वर्जन है और लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं अब। बट बाकी भी अगर
कोई ऐसे लोग हैं उनको ये लगता है कि सोशल स्टिग्मा है, दे शुड कम, उनका जो भी एक्सटॉर्शन हुई है पैसे की तो हमारा इंश्योरेंस रहेगी कि उनको ये पैसा वापस चला जाए। इस केस में पैसे इनसे कुछ वापस लिए गए हैं जो जिन्होंने ये कांड किया? हाँ, ये प्रोसेस हो जाएगा स्टार्ट अभी इमीडिएटली। एफआईआर तो हो गई है, बट अब ये केस जैसे वो हो गया, एफआईआर हो गई है, तो प्रोसेस कि ये पैसे इनके वापस जाएंगे। कितने लोग थे इसमें इन्वॉल्व? इसमें अभी तक हमने 3 को अरेस्ट किया है, तो उसमें 1-2 लोगों का और नाम आ रहा है, तो उनको भी अरेस्ट हो जाएंगे, वो भी जल्दी एब्सकॉन्डिंग है। पुलिस सतर्क है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पुलिस के लिए ये होती है कि लोग उनके पास जाएं, शिकायत दर्ज करें, उसके बाद ही तहकीकात हो सकती है। होशियार रहने की ज़रूरत है। पुलिस अपनी जगह लगी हुई है, लेकिन आम लोगों की सबसे अहम बात यह है कि हम जज्बात में ना आए, या अगर आपको लगता है कि दौरा 4 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। हमारे नुमाइंदे ने बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता से वज़ीर दाखिला के दौरे की तैयारियों के हवाले से बातचीत की। देश के गृह मंत्री अमित शाह की इसी मैदान पे ग्रुप में है और पूरी तरह से पंडाल जो है वो सजाया जा चुका है। मेरे पास रैली के इंचार्ज और बीजेपी के स्टेट के यूटी के जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता। किस तरह की तैयारियां मुकम्मल कहां तक हुई? शक्ति जी, आप अगर इस समय कैमरे को लगाएंगे अपने को, आप देखिए कि इस स्थल के अंदर कितने अच्छे तरीके से का भी हमें पूरा सहयोग मिला है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक को बताऊं कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इस रैली में आने वाले हैं राजौरी पुंछ से। और राजौरी पुंछ की जनता को मैं अपील करना चाहूँगा, इस समय ना कोई राजौरी पुंछ के बॉर्डर के लोगों की बात सुनने आ रहे हैं, अपनी बात रखने आ रहे हैं। ज़्यादा संख्या में हम आए, 30 से 4 लगाकर 4-5 पॉइंट जहाँ 5-5, 10-10 हज़ार लोग हों और वो वहाँ पर सुने। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सौभाग्य है राजौरी पुंछ के लोगों का कि माननीय अमित शाह हो रही है। पुंछ जिला और राजौरी जिला दोनों जिला में मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। किस तरह का जोश है और लोगों की तैयारी किस तरह से है? कितने सैलाब जो लोगों का किस तरह से? देखिए, अगर हमने पुंछ, सुरनकोट, दरहाल, कोटरंका, मंजाकोट, थन्ना मंडी, डांगरी, डूंगी, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, मोगला, त्रियाट, सब तरफ हमारा जाना हुआ है। लोगों के अंदर बहुत ही एक जोश है। माननीय अमित शाह जी देश के अंदर बड़े दूसरे ऐसे पटेल जी के बाद वो ऐसे ताकतवर होम मिनिस्टर की सोच को उन्होंने लागू किया 5 अगस्त 2019 के बाद, और उन्होंने जम्मू कश्मीर में रहने वाले हर वर्ग के साथ उन्होंने जो है वो इंसाफ की। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया और उसके साथ साथ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट दिए। होतली ऑनरेबल हमारे खटाना साहब, कुल मिलाकर गुज्जर बकरवाल समाज इस बात से बड़ा खुश है और मुझे लगता सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए क्विज और दीगर मुकाबलों का एहतमाम किया। काफी तादाद में बच्चों ने हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पोजीशन हासिल करने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं टंगमार्ग में, वो भी कांटेक्ट की है एजे जर्न ने, आर्मी गुड स्कूल जर्न टंगमार्ग ने। जैसा कि आप सब देख रहे हो टंगमार्ग, लेकिन एजे जर्न ने ऐसे इवेंट्स किए, एथलेटिक मीट है, क्विज कंपटीशन इन टंगमार्ग टाउन हॉल में, बहुत सारे इवेंट किए। माइग्रेशन की वो भी आए, उन्होंने भी अच्छे से एंजॉय किया। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड इट वाज ऑल ड्यू टू इंडियन आर्मी। और उसके बाद जो सर था टुडे एजे जर्न पोजीशन के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जो कि सिविल पॉपुलेशन उसके अंदर तकरीबन 2000 इसके अंदर हम सारे स्कूल्स को